الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. وردا ملګری فلک په کلام باندې کېنه دی خو بیانات شروع دي ریس قسم نه کې نشتا بالکل پار کر رکھنا سٹیج نہ بالکل رکھنا بازو دے اور پسڑی تو بیان پہ کہ انسانیت پہ کی نشتا وقت نہ سے توای بخلاص سے کم کسڑی لگا کو شروع کو دمنا ولا دغرولا پورا ڈانگ ولا منا رولا پر 60 پانی ہوا. میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے عہدیداروں کو جماعتی علماء کو اور جماعت کے اراکین کو اتنے عظیم الشان یقیناً اس کامیابی کے پیچھے ہمارے امیر محترم اور قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن طاہری دامت برکاتہم کی کوششیں بھی ہیں اور ان کی دعائیں بھی.
اللہ آنے والے اجتماعات کو اس سے بھی زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار کر دے۔ کل سے اجتماع شروع ہے۔ میں بھی فیس بک کے ذریعے مختلف علماء کی تقاریر سنتا رہا۔ تقریباً تمام علماء نے اور خطباء نے اپنے جماعتی مشن اور نصب العین توحید و سنت کو قرآنی رنگ میں بیان کیا ہے۔ شرک و بدعات کی مذمت ہوتی رہی۔ میرے ذمے ختم نبوت کا موضوع یقیناً اس لیے لگایا گیا کہ آپ کے منہ کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کے ان بنیاد اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی معبودیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، انبیاء کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اسے مومن کہلانے کا حق حاصل ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کو مانے، انبیاء کی رسالت کو تسلیم کرے، آمنہ کے لال کی نبوت کو مانے، قیامت پہ اس کا ایمان ہو، لیکن وہ میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق حاصل ہو نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر قرآن پاک کی 100 آیات دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ جس پر میرے آقا کے 200 سے زیادہ فرمان دلیل ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ایسا واضح مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ کا اکٹھ ہوا، اجماع ہوا، اور ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل مانگے کہ تو نبی ہے، تو تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ میں تجھے نبی تب مانوں گا جب تو کوئی معجزہ پیش کرے۔ امام صاحب کہتے ہیں مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں اہل علم کے مجمع میں کھڑا ہوں، بہت
कसीर तादाद में यहाँ उलमा मौजूद हैं और तलबा मौजूद हैं। बोलिए और बताइए, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, वो मेरे नबी को भी नबी मानता था, लेकिन उसका कहना यह था कि आधी दुनिया के आप नबी हैं, आधी दुनिया का मैं नबी हूं। तो क्या सहाबा ने मुसैलमा से ये कहा था आओ मुनाजरा कर लें, आओ टेबल टॉक करें, तू अपने मौक़िफ़ पे दलील दे, हम अपने मौक़िफ़ पे दलाइल देंगे, हम आका की खत्म नबूवत ज़ाहिर करेंगे, तू अपनी नबूवत साबित कर। सहाबा ने उससे दलील नहीं मांगी, मुनाजरा मुबासा नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मेरे आका के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उससे दलाइल नहीं मांगे जाएंगे, अबू बकर की तलवार फैसला करेगी। जिहाद किया सहाबा ने। ये ऐसा वाज़े मसला है जिस पर कुरान की आयतें मौजूद हैं, मेरे आका के फरामीन मौजूद हैं, सहाबा का इजमा मौजूद है, तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है कि नबूवत का दरवाज़ा आमना के लाल पर क्या हो गया। मैं आज यहाँ एक नए रंग में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये लाखों का इज्तिमा है और इज्तिमा भी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का है। मैं जानता हूँ कि खत्म नबूवत का मसला बयान होता है, खत्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आने वाले खतीब बयान क्या करते हैं। मिर्जा काना था, यह उनकी तकरीरों का खुलासा होता है। मिर्जा की एक आंख नहीं थी, मिर्जा बेअकल था, वो अपने जेब में गुड़ रखता था, मट्टी के ढेले रखता था, गुड़ के साथ पेशाब पकाया करता था, ढेले खाया करता था। नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में, ऊपर वाला बटन नीचे। ये भी कोई दलील है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का एक जुमला कहना चाहता हूं और देखता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग उस जुमले से कितना लुत्फ हासिल करते हैं। शाह जी ने कहा, अगर मिर्जा कद का सरू होता, उसकी आंखें चश्मे गिजाला होती, होंठ गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, कमर पतली होती, सीना चौड़ा होता, चेहरा रोशन होता, फिर नबूवत का दावा करता तो हम मान जाते। फिर शाह जी ने एक बात कही, बस वही बात बड़ी खूबसूरत है, अगर पसंद आए तो शाह जी को दुआ दे देना। शाह जी ने कहा, अगर नबूवत का दावा करे हजरत अली, जिसे बेटी नबी ने दी थी और तलवार रब ने, तो हम उनके दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहना कि उसकी मां का नाम ये था, उसकी शक्ल ऐसी थी, इस तरह दावत का काम नहीं होता। आज तुझे इशाअतुत तौहीद वाले बताएंगे कि खत्मे नबूवत के महाज पर काम कैसे होता है। मैं अमीर मोहतरम की मौजूदगी में इस लाखों के इशाअतुत तौहीद के इज्तिमा में मिर्ज़ाइयों को दावत ईमान देना चाहता हूं। आओ मिलके उन्हें दावत ईमान दें। आओ मिलकर आज इस मोतबर स्टेज से
हम दुनिया के मिर्जाइयों को दावत ईमान देते हैं कि तुम में पढ़े लिखे लोग हैं, तुम में डॉक्टर भी मौजूद हैं, तुम में प्रोफेसर भी मौजूद हैं, तुम में इंजीनियर भी मौजूद हैं, तुम में वकला भी मौजूद हैं, तुम में साइंसदान भी मौजूद हैं, तुम में बैरिस्टर भी मौजूद हैं। ओ मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठकर सोचा करो कि कटे हो किससे। नहीं ना, आप मेरा ये जुमला समझे, किससे कटे हैं मिर्जाई? आमना के लाल से। किससे कटे हैं? मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे हो किससे और फिर जाके जुड़े हो किससे। कभी तन्हाई में बैठ के मिर्जाइयों सोचा करो, हम तुम्हारे खैर खा हैं, हम तुम्हें जन्नत के किनारे पे लाना चाहते हैं, हम तुम्हें दावते ईमान देते हैं कि सोचो कभी तन्हाई में बैठ के कटे किससे हो और फिर जाके जुड़े। कटे हो उससे, कटे हो उससे जिसका लक़ब ही सादिक था और वो नबूवत के मिलने से पहले मक्के की गलियों में चला करता था, तो लोग उसका नाम लेके उसे नहीं बुलाते थे, लोग कहते थे वो सादिक जा रहा है, वो अमीन जा रहा। कटे हो किससे? ये अभी मौलाना अशरफ अली साहब बयान कर रहे थे, जर्रबना लका मिरारा मारईना फी का इल्ला सिद्का। क्या कहा था मुशरिकीन मक्का ने? हमने तुझे सच्चा पाया। फरमाया मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं, तुम दामन में हो, जो चीज पीछे मुझे नजर आ रही है वो चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही। अगर मैं कहूं पीछे से एक फौज आ रही है, तुम पे हमला करना चाहते हैं, मेरी बात मानोगे? कौम के जो वडेरे थे, सिरदार थे, उन्होंने सोचा हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, ये फौजें लेके कौन आ गया? उनमें से चंद लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, चंद लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, मेरे नबी के साथ जाके खड़े हो गए। कहां है फौज? तुम्हें नजर नहीं आ रही कि हमें एक फौजी, एक सिपाही, एक लश्करी भी नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया आंखों से देख चुके हो, कुछ नहीं है। अब मैं कहता हूं कि फौज आ रही है, मानोगे? मक्के वालों ने जवाब में क्या कहा? जुमला पसंद आ जाए जिसको मैं अदा कर रहा हूं तो फिर सुभान अल्लाह कह देना। मक्के वालों ने कहा तेरी 40 साला जिंदगी की सदाकत, दियानत, अमानत, शराफत इस बात के कहने पर मजबूर करती है, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे किससे हो। मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कि कटे किससे हो। जो सादिक है, सादिक, तवज्जो है आपकी? कहूं एक जुमला, कहूं एक जुमला, समझोगे? और जिन आप सबको सहाबा से मोहब्बत है, जोर से कहो, जोर से कहो, जोर से कहो, तो फिर आप सबको सहाबा से मोहब्बत है तो जुमला पसंद आ जाए। आखिरी बंदे तक आवाज लगाए मेरी आवाज के साथ, मिर्ज़ाइयों, कटे उससे हो जो सिर्फ खुद सादिक नहीं था बल्कि
जिसने उसके दामन को पकड़ा था वो भी सिद्दीक अकबर बन गया था। कटे हो उससे। और जाके जुड़े किससे हो? मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, जुड़े किसके साथ हो? किताब लिखता है, मिर्जा किताब लिखता है और लोगों से कहता है मैं 50 जिल्दों में किताब लिखना चाहता हूं, 50 जिल्दों में मुझे पेश की रकम भेजो। लोगों ने 50 जिल्दों की रकम भेजी। बराहीन अहमदिया किताब लिखी, एक जिल्द, दूसरी, तीसरी, चौथी, और 5वीं लिखने के बाद 5वीं किताब के शुरू में कहता है मैंने 50 जिल्दें लिखने का वादा किया था, और 50 और 5 में सिफर का ही तो फर्क होता है। मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, छोड़ा किसको और फिर माना किसको? जिसने कहा कि कुरान में 3 शहरों के नाम हैं, एक मक्का, एक मदीना, एक कादियान। झूठ बोला, और झूठ भी किस पर? रब पर, जिसको तुमने नबूवत के मनसब पे फायज किया वो झूठ बोलता था, और जो झूठ बोले वो नबूवत के मनसब पे फायज नहीं हो सकता। मिर्ज़ाइयों, मैं तुम्हें इस मोतबर स्टेज से मेरी तकरीर तुम तक अगर पहुंचे, फेसबुक के जरिए पहुंचे या किसी जरिए से पहुंचे, मैं अमीर मोहतरम की मौजूदगी में तुम्हें दावत ईमान देता हूं कि तुमने छोड़ा है उसको जिसके अखलाक ये थे कि कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जो गालियां सुन के दुआएं दिया करता था, जो औरत उसके सर पे गंद के टोकरे डालती थी वो उसकी बीमार पुरसियां करता था, और हजरत हमजा के कातलों को, वतन से निकालने वालों को फतह मक्का के दिन कहता है ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। छोड़ा तुमने उसको, मेरे पास वक्त नहीं है ना, मैं मुख्तसर करना चाहता हूं। छोड़ा उसको और पकड़ा किसको? जो गालियां बकता था। अपनी किताब में लिखता है जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, जो मुझे नहीं मानते वो कुतिया की औलाद है, और जो मुझे नहीं मानते वो औलादुल बगाया है। उलमाए के नाम, ये बगाया का क्या मैं, बगाया का क्या मैं, कंजरियां। जो मुझे नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, मुखालिफीन पे लानते करता है। ओ मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कि छोड़ा किसको है? उसे जिसकी कोई पेशिन गोई कभी झूठी नहीं होती। जो उसने पेशिन गोई की वो सच्ची हुई, जो कहा वो पत्थर पे लकीर हो गया। कोई पेशिन गोई झूठी नहीं। खुतबा दे रहे, नवासा मस्जिद में दाखिल हुआ, वो ठोकर खा के गिरा। मेरे आका ने खुतबा छोड़ा, नवासे को उठाया, मिंबर पे आए, उठा बुखारी और मिंबर पे आके कहा इन नबनी हाजा सय्यदुन लाअल्लाह अन युस्लिया बिही
बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये हसन बेटा सिरदार बेटा है, मेरा ये हसन बेटा सिरदार बेटा है। अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। ये मेरे नबी ने पेशन गोई की। 35 साल के बाद जब हजरत हसन के पास इमामत खिलाफत आई, 6 महीने खिलाफत की, और जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा तो हजरत मुआविया की तरफ खत लिखा कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं। हजरत मुआविया ने सफेद कागज पे दस्तखत किए और फरमाया, जाओ जड़ियां शर्तां दिल च आंदियां नहीं लिख ले। ये पंजाबी तो न समझ आओ? नहीं जी, उर्दू में। जब आप पश्तो बोलते हैं तो हमें भी समझ नहीं आता। कोई तो बदला लांग दो। सफेद कागज पे दस्तखत किए, जो शर्तें चाहे लिख लो। हसन ने क्या शर्तें लिखी? सुनाऊं एक शर्त, पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कहोगे। हजरत हसन ने एक शर्त लिखी, हुकूमत उस तरह करोगे जिस तरह अबू बकर और उमर ने करके दिखाई थी। सुलोई हजरत मुआविया ने कहा, मैं कूफे आ जाता हूं, लोगों के सामने बैत हो जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए। हजरत हसन ने फरमाया, तू कूफे क्यों आता है? मैं दिमिश्क तेरे घर में आके तेरे हाथ पे बैत करूं। ये दोनों भाई दिमिश्क पहुंचे। दिमिश्क की जामिया मस्जिद में सुन सकते हो तो हकायक बड़े कड़वे होते हैं। मुआविया पे तबर्रा करना और तान करना आसान होता है। सुनो, दिमिश्क की जामिया मस्जिद में मेरे नबी के दोनों नवासे पहुंचे। दोनों नवासे नीचे बैठ गए, मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया। कुम या हसन फबाये फकामा फबाया, कुम या हुसैन फबाये फकामा फबाया। दोनों ने बैत की। इनकी फौज का सिपा सालार है कैस इब्ने साद इब्ने उबादा। कुम या कैस, कैस तुम भी उठो और मुआविया के हाथ पर बैत करो। रिजाल कशी 3री सदी का शिया आलिम है। रिजाल कशी उसका सफा 101, जाओ उठाओ अपने मकतबों में जाके, या हमारी बात मान या अपनी किताबों को आग लगा दे, जला दे अपनी किताबें। रिजाल कशी का सफा 101, ये 3री सदी का आलिम है। लिखता है कि जब हजरत कैस को कहा ना, कुम या कैस फबाये, तो ये फौजी आदमी है। कैस कौन है? फौजी आदमी है। ये फौजी है, सिपा सालार है। फल तफत कैस इलल हुसैन, कैस ने देखा किसकी तरफ कि मन रान दो, मैं कल इनसे जंग करता रहा, आज मैं इनके हाथ पर बैत करूं। फल तफत कैसो इलल हुसैन, सुनाऊं हजरत हुसैन की बात? बोलो जरा जोर से बोलो, आखिर तक का आदमी बोले। सुनाऊं? रिजाल कशी ने उसको नकल किया। जब कैस ने हजरत हुसैन की तरफ देखा, आंखों आंखों में बातें की, हजरत हुसैन ने कहा, कुम या कैस हो,
मुआविया के हाथ पर बैत करो, फ़इन्नहु इमामी। ये जुमला जज्बात में नहीं कहना चाहता, आराम से कहना चाहता, और फिर आपको देखना चाहता हूं कि मेरा आराम से कहा हुआ जुमला किस तरह आपके सीने में तराजू बन के उतर गया। ओए लोगो, वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा। वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसके हाथ पे बैत करने वाला मेरा नबी का नवासा हसन हो। जो मेरे नबी ने पेशिन गोई की पूरी हुई, कोई पेशिन गोई मेरे नबी की झूठी नहीं निकली। और मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, जिसके दामन को तुमने पकड़ा है उसकी कोई पेशिन गोई कभी पूरी नहीं। किताबें तो पढ़ो। कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मिर्जा कहता है हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों सुनो, मक्के और मदीने में मरना तो दूर की बात है, इसे मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं। जो पेशिन गोई की वो झूठी निकली। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो। और एक इशारा करने लगा हूं, तुम जल्दी नहीं समझोगे तुम। उलमा जिन्होंने मिर्जाइयत का मुताला किया है वो समझ जाएंगे, और मिर्जाई मेरी इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। हमें ये तो बताओ, ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? मिर्जाइयों, कभी अपने मुरब्बी से पूछो ये मोहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? जो मिर्जे की रिश्तेदार लड़की थी, औरत थी, और मिर्जे ने उसके बाप से कहा था मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह अर्श पे हो गया है, मुझे दे दे इसका रिश्ता। मोहम्मदी बेगम ने ठींगा दिखा दिया। मैंने इशारा कर दिया। मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई मुल्तान। कहां? किसी ने मिर्जा को कहा तू तो कहता था अरश पे तेरा निकाह हो गया है, ओ ते ले गए ने मुल्तान वाले। आपको नहीं कहा, वो तो ले गए मुल्तान वाले। तो मिर्जा कहता है सुनो मिर्जाइयो, तुमने नबी किसको मान लिया? मिर्जा कहता है मैंने कब कहा था कि कुंवारी मेरे निकाह में आएगी? आएगी, बेवा होके आएगी। इसका खामन 3 साल में मर जाएगा, फिर आएगी। मिर्जा 1908 में मर गया और मोहम्मदी बेगम का खामन 1948 तक जिंदा रहा। और मिर्जाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, किसको तुमने नबूवत के मनसब पे फायज किया, जिसकी कोई पेशिन गोई सच्ची साबित हो नहीं हुई। मिलिए मेरे साथ एक आवाज मिला के, आखिरी बंदे तक मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जो झूठ बोले, जो सच्चे नबी होते हैं वो बदज़बान नहीं होते। और जो बदज़बान हो, जो सच्चे नबी होते हैं उनकी पेशिन गोइयां झूठी नहीं होती। और जिनकी पेशिन गोइयां झूठी हो
जो सच्चे नबी होते हैं वो स्कूलों में उस्तादों के डंडे नहीं खाया करते, वो मकतब में मदारिस में नहीं पढ़ा करते, डंडे नहीं खाया करते। जो सच्चे नबी होती हैं उनके जाहिरी जिस्म में कोई ऐब हो। ये जो अब जुमला कहने लगा हूं, ये मेरी पूरी तकरीर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। लेकिन जितने लोग खड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, जहां तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग, इधर लोग खड़े हैं, इधर लोग खड़े हैं। आखिर तक, आखिरी बंदे तक स्टेज पे जितने उलमा हैं उनको मेरी ये बात पसंद आ जाए तो वो भी दाद दे दें, उनकी मेहरबानी है। आपने दाद देनी है हाथ उठा के। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होते हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। जो सच्चे नबी होते हैं जो सच्चे नबी होती हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें, और जो किताबें खुद लिखे। और मिर्ज़ाइयो, मैं तुम्हें इस मोतबर स्टेज से दावत ईमान देता हूं। आओ सोचो, कभी गौर करो और फिक्र करो। जो सच्चे नबी होते हैं, कहूं जुमला, पसंद आए तो फिर दाद दोगे। जो सच्चे नबी होती हैं, जिस जगह पर उनका इंतकाल होना हो, अल्लाह बहुत पहले उस जगह को रियाजुल जन्ना बना के रख देता है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। मिर्ज़ाइयो, मिर्ज़ाइयो और मिर्ज़ाइयो, मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने अपने बाप की सीरत पे किताब लिखी है, सीरत महदी। मिर्ज़ाइयों पढ़ो उस किताब को, मिर्ज़े के बेटे ने लिखी है सीरत महदी के नाम पर, जिसमें उसका बेटा लिखता है कि मेरी मां कहती है कि जब आखिरी वक्त आया मिर्ज़ा का तो ज़बान खुश्क हो गई, फिर ज़बान बंद हो गई, फिर उसे हैज़ा हुआ, फिर मुंह से गंदगी निकलने लगी, फिर मुंह से गंदगी निकलने लगी, फिर लैट्रीन जाने के काबिल न रहा। मेरी मां ने चारपाई के करीब जगह बना दी, उस जगह पे उसकी मौत वाक़या हो गई। जिनको तुमने नबी माना उसकी ज़बान बंद हो गई, खुश्क हो गई ज़बान, और जिसको हमने खातिमुन नबीयीन माना वो आखिरी वक्त तक बोलता रहा और मोती रोलता रहा, बोलता रहा और मोती रोलता रहा। जिब्रील करीब खड़े, आखिरी वक्त है, दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे आका ने पूछा कौन है, कौन है? जिब्रील ने कहा ये वो है जिसने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी, लेकिन रब ने इसे कह के भेजा है मेरे नबी के घर में कदम नहीं रखना जब तक मेरे नबी से पूछ नहीं लेना। ये इजाजत मांगता है, बुला लूं, बुला लूं। मेरे आका ने कहा जिब्रील ये बता, जिब्रील ये बता, जिब्रील ये बता,
جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا آخری وقت ہے۔ میری ماں کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ کی روح مبارک جسد اقدس سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی، ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ مرزائیو، میں تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں اشاعت التوحید کے سٹیج سے۔ آج تک کسی عالم نے اس طرح گفتگو نہیں کی ہوگی۔ میں نے خیر خواہی کے جذبے سے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھایا وہ دانا، عقل مند، ہوش مند، شریف انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ بس ایک ہی بات اس کی دانائی کی سناتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں۔ بس ایک ہی دانائی کی بات سناتا ہوں۔ کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، میں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کر دوں۔ مولانا عصمت اللہ ملتانی نے خطاب کرنا ہے، اب تازہ دم میں۔ مرزا کہتا ہے، جب گھر والوں نے میری شادی کا ارادہ کیا تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے شادی سے انکار کیا، میں نے گھر والوں کو کہا میں اس قابل نہیں۔ گھر والوں نے پھر میری شادی کر دی۔ پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو۔ 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میری تقریر کے آخری جملے ہیں، مرزا جی یہ معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ دا حضرت شیخ صاحب بیان ہوئی خدا غیر مخ کے دا سراج الدین سنگریان